into your two-dimensional. When you speak about kinematics, one student says always speaks about linear motion. Kinematic 2 speaks about projectile motion as well as circular motion. Now, to go ahead with it, students, I'll just brief up the three linear kinematic equations, students, for a body moving with uniform acceleration along a straight path. Uniform acceleration, students, so तुम्हारा equation होगा v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square is equal to u square plus 2as. ये तुम्हारे तीन equations हैं, and these are your three equations of motion. Now, students, in the first case, when we did it graphically, but at the same time, students, we use calculus method also to get these mathematical relation. Now, before going further ahead, can anybody derive, the answers in students, can anybody derive all these three equations by calculus? Any one of you? Hope you got the question very clear. I want any one of you all to derive the three linear kinematic equations for a body moving with uniform acceleration by the method of calculus. You can use differential calculus, integral calculus to get the answer accordingly. Anyone? और ये मैं सिखा चुका हूँ स्टूडेंट्स, बता चुका हूँ तुम्हें ये तीन अगर इक्वेशंस डिराइव करना है तो हम लोग ने ग्राफिकल मेथड किया था. अगर शायद तुम्हें याद हो, एक छोटा सा मैं यहाँ पे ब्रीफ दे देता हूँ उसके बारे में. स्टूडेंट्स, इफ यू रिकलेक्ट, क्योंकि हम अभी ग्राफ्स भी करने वाले हैं स्टूडेंट्स. वी आर गोइंग टू डू ग्राफ्स इन दिस. This is a horizontal x-axis, this is a vertical y-axis. If I say, students, plot a graph of a body moving with uniform acceleration along a straight path, that means I want to plot a graph of velocity versus time. तो शायद अगर तुम्हें मालूम होगा तो we had plotted this kind of a graph. फिर इसी ग्राफ को लेते हुए स्टूडेंट्स, अगर मैं स्लोप फाइंड आउट करूंगा, and if I find out area under the graph, I can simply get these equations. स्टूडेंट्स, क्या ये पार्ट क्लियर है सबको? Yes, sir. सारे ने पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स. Everybody has learned this part and they'll have learned it in class 9th also. Back I have told you in class 11th also, students. Before going further at students, before going further, यानी ये तीन equations में area under the graph का मतलब क्या? If in case if I say this is the starting point, this is the initial time and this is the final time, students, for the graphical, area under the graph will be the area of this particular shaded part. ये तुम्हारा shaded portion जो है उसका area चाहिए. It's like this. ये तुम्हारा shaded portion. This is the area under the graph you consider. So now when you look at the geometrical shape, you can consider it's a kind of a trapezium. ये दो parallel side हुआ और ये perpendicular side हुआ. तो वो एक different approach था, students. It was very easy for one to get it, and that you had learned it in class 9, that's back in 11. But I now want to derive these equations by the method of calculus. Can anyone? Yes, can anyone get it by the method of calculus, please? Come on, Neha. Neha, are you there? Izar, Riho, Rishabh, Daksh, Veer. Can you answer, Neha? या भूल गए हो? Okay, students, shall I do it for you all again? Students? Yes. Yes. Okay. So this is not done. ये नहीं होना चाहिए तुम लोग का. ऐसा नहीं करते स्टूडेंट्स. जो चीजें सिखाती है उसको तुम कैसे भूल सकते हो, my dear? Now, if in case if I happen to go for
let me consider the students. Let us say that I'll go for the equation students of acceleration. Students, हम acceleration को कैसे लिखते हैं? It's rate of change of velocity, that is dv by dt. यानी if in case अगर मुझे कोई velocity का expression देता है students और उसको मैं differentiate करता हूँ with respect to time, तो मुझे acceleration मिलेगा. Velocity कैसे लेते हो? So velocity is differentiating displacement with respect to time students. तुमने laws of motion में भी किया है students ये सारी चीजें. Velocity is equal to rate at which displacement takes place. That means differentiating displacement with respect to time will give you velocity. This answer will be in meter per second square. This answer is in meter per second. अभी ध्यान से सुना. Suppose अगर मैं v को यहाँ पे substitute कर दूं, तो can I say my acceleration can be written as what? Differentiating ds by dt with respect to dt. Students, क्या ये clear हुआ? मैंने v की जगह पे ds by dt लिखा. Yes, sir. Yes, sir. अभी acceleration को क्या बोलोगे तुम? Second order derivative of displacement. Second order derivative of displacement with respect to time. So can I say acceleration can also be written in this manner? क्या ये part clear हुआ सबको? Yes, sir. Yes, sir. और मैंने clearly मैंने बताया था students, whenever you try to go for finding out one physical quantity with respect to another, यानी suppose ध्यान से सुना students, ये भी ध्यान में रखना. अगर तुम suppose ये this is important enough for you to solve with questions. If I'm trying to go from displacement, if I have displacement, and from displacement we try to find out velocity, and using the differential equation of velocity we can find out acceleration. यानी अगर तुम displacement को differentiate करते हो तो तुम्हें velocity मिलेगा, velocity को differentiate करोगे तो तुम्हें acceleration मिलेगा. यानी अगर तुम छोटे से बड़े की तरफ जाओगे तो you use differential calculus. मैंने सिर्फ DIFF लिखा है students, उसका मतलब तुम यहाँ पे सिर्फ differentiation use करोगे. वापस रिपीट कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट टू वेलोसिटी, वेलोसिटी टू एक्सेलरेशन, सिर्फ डिफरेंशिएशन. लेकिन अगर तुम उल्टा जाते हो फ्रॉम एक्सेलरेशन टू वेलोसिटी एंड वेलोसिटी, Integration. यस, टू डिस्प्लेसमेंट, यानी बड़े से छोटे में जाओगे तो क्या यूज करोगे? इंटीग्रेशन. ये ध्यान में रखना. Now suppose if I want to get this kinematic equation, students, ये सारे kinematic equations हैं. These are kinematic equations for a body moving along a straight line with uniform acceleration. Let us take acceleration is equal to what? Students, acceleration is rate of change of velocity. ये तुम्हें formula पता है? Therefore, can I say students? Therefore, can I say dv will be equal to what? A into dt, students. Is this clear? Yes, Students, sir. क्या होगा? Now what I'll do? I'll try to integrate on both the sides, students. Integrating both the sides. I'm getting it and putting the limits. Students, मैं integrate करता हूँ और limits डालता हूँ. Let us say that integration of dv, initial velocity is u, final velocity is v. Integration of a into dt, students. Initial time t equal to 0, final time is t. यानी 0 to t. देखो ना students, मैंने limits डाल दिए. यानी ये कौन सा integration हुआ students? Is it indefinite integrals या definite integrals? Definitely integral. Definite integrals हुआ. यहाँ पे constant of integration आएगा students? Students, will constant of integration will come over here? Plus c आएगा? Sir. नहीं आएगा. Students, indefinite integrals में c आता है, definite integrals में c नहीं आएगा. ये ध्यान में रखना. तो यहाँ पे क्या है? What is integration of dv? Because integration of dv will be v. Students, integration of ds is s. Integration of dx is x. Integration of du is equal to u. Integration of dw will be w. Integration of df will be f. Integration of dv is v. This is the basic formula. अभी मैंने डाल दिया lower limit u, upper limit v. Acceleration constant, body is moving with uniform acceleration. Integration of dt will be simply b 0 to t. Now what I'll do, I'll substitute the upper limit minus the lower limit is equal to a. यहाँ पे t minus 0. So what's my final answer? V minus u is equal to 80, students. Therefore, can I say v is equal to u plus 80? क्या ये clear हुआ students? Yes, sir. यानी हम करे हुए क्या students? तुमने सिर्फ acceleration का expression लेते हुए तुमने कौन सा equation लेके आए हो? You find out the first linear kinematic equation for a body moving with uniform acceleration along a straight path. Students, हम लोग ने पहले हम लोग ने कैसे किया था? Students, हमने graphically किया है.
इसको ग्राफिकली भी किया है, और ये पार्ट मैंने इन शॉर्ट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू आल्सो इन दिस केस. Now this is v is equal to u plus ed. ये तुम्हारा पहला इक्वेशन है. Now if I ask students, can you give me the second equation? चलो, कोई सोच सकता है कैसे आएगा second equation, students? Anybody? Come on, I'll give you 3 minutes to think. Anyone? Sir, Don't first look here and we'll there. differentiate this very equation. So can you be louder? Izar, I'm not able to hear you clearly. Can you be loud? Sir, first we'll differentiate this very equation. Differentiate. कौन सा equation? V is equals to u plus at. तो ये मेरे को dv by dt मिलेगा students. उससे क्या है? मुझे s चाहिए, s. Students, I want s. Use this equation now. Velocity is equal to rate at which displacement takes place. Therefore, can I say, students, ds is equal to v into dt? Students? Yes, sir. Now, did I get my first equation? V is equal to u plus ad. Is my first equation Yes, equal to? sir. क्या मैं ये v को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, students? Yes, sir. Now, चलो solve. चलो यहाँ तक hint दे दिया. Now, can anybody solve and get me the answer? Friends, now I've given it to you. Now I want you to solve it by yourself. Neha, you are not responding much. Huh? Nowadays, you are just texting. You don't unmute also. I found out for last 1 or 2 sessions. Hope all is well with your end. Students, those who know it, unmute yourself and answer. Gain confidence. Yes, anybody? Shall I solve it for you, students? Sir, done. So shall I solve it? Yes, sir. क्यों ऐसा करते हो तुम लोग? मुझे पता नहीं चलता है. Students, मुझे Sir, S half गलत है. तो देखो ना, v को क्या यूज करोगे? u plus ad, students, into dt आएगा. मैंने क्या बोला था? सब्स्टिट्यूट v. स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? Yes, sir. Now can I multiply this? ds is equal to u into dt plus a into t into dt. Now integrate both the sides.
Absolutely correct. Neha, why can't you unmute nowadays, Neha? Why you texted? मुझे ये पता नहीं चल रहा है. पहले तो अच्छे खासे unmute हो रहे थे. Integration of ds is equal to integration of u into dt plus integration of a into t into dt. And Pu, what about your friends? That something from M. They're not there in the lectures. At times we Sir, do don't answer. know. Sir, Okay. Swayam. Yeah, Swayam was there. There was one more person. तुम्हें फोन वगैरह आते कि नहीं आते स्टूडेंट्स ऑफ when you're remaining absent, don't you get calls from the centers? What is the strength of this batch, students? Sir, 43. 40. Huh? It, 43? it so varies. Yes, sir. कितना? How many students are there in this batch? Yo, Sir, it goes around 40 sometimes 35, like that. ऐसा कुछ कुछ लेक्चर में होता है. ऐसा कभी कांस्टेंट नहीं रहा एवरी टाइम. Sometimes 20, 30 also sometimes. okay. Now please pay attention. अगर मैं इंटीग्रेट करता स्टूडेंट्स दोनों तरफ तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ ds is equal to integration of u into dt plus a into d into dt. What is integration of ds, students? आ गया s. अगर मैंने इनिशियल वेलोसिटी को बाहर निकाल दिया तो what is integration of dt, students? t plus acceleration constant मैंने निकाल दिया. Students, what is integration of t into dt? T square by 2. Very good. T square by 2. आ गया तुम्हारा फॉर्मूला. S is equal to ut plus half at square, students. आ गया तुम्हारा सेकंड इक्वेशन. Yes, sir. स्टूडेंट्स मैंने किया क्या, मैंने वेलोसिटीज को रेट एट वेट डिस्प्लेसमेंट बेस ds को मैंने सब्जेक्ट बना दिया और मैंने v को सब्स्टिट्यूट कर दिया जो पहला इक्वेशन आ गया था और सिर्फ मैंने इंटीग्रेट कर दिया. You can get the answer for S is equal to ut plus half at square. And students, we are using method of calculus to get your answer. Now can you get the last वाला कोई बता सकता है? V square is equal to u square plus 2s, वो कैसे निकालोगे? Anyone? Sir, we will take V is equals to DS. V is equal No. I want v square is equal to u square plus 2as. This is very this is slightly trickier. So ये थोड़ा सा trickier है. V square is equal, लेकिन बहुत ही easy है if you have understood one important rule in derivatives. चलो मैं hint दे देता हूँ. You have to use chain rule in derivatives over here to get the answer. Anybody? Okay, मैं solve करूँ students. Shall I solve it for you? Yes, sir. Students, what is acceleration? Acceleration is rate of change of velocity. Absolutely correct, Neha. Absolutely correct, Neha. देखो Neha देखो. Students, acceleration is what? Acceleration is rate of change of velocity, dg by dt. What I'll do it is, I'm going to use chain rule in derivatives so that I'll multiply my numerator and denominator by ds. Since chain rule in derivatives का मतलब क्या? What exactly chain rule in derivatives is considered to be? Since I want acceleration, students, ध्यान से सुना, मुझे acceleration चाहिए, तो ध्यान से सुना students, velocity should be differentiated with time to get acceleration. क्या इतना clear हुआ students? Yes, sir.
लेकिन हम क्या करते हैं चेन रूल में, हम क्या करेंगे, हम वेलोसिटी को टाइम से डिफरेंशिएट नहीं करेंगे डायरेक्टली, हम वेलोसिटी को पहले डिफरेंशिएट करेंगे एस से, और फिर एस को डिफरेंशिएट करेंगे विद टी, तो आ जाएगा ए। स्टूडेंट्स अगर तुम्हें ये सोचो स्टूडेंट्स, चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है, तुम्हें अगर जाना है एक जगह से दूसरी जगह पे, प्लेस 1 टू प्लेस 2, तो यू फाइंड आउट एन इंटरमीडिएट पाथ एंड गो, ये एक टाइप का लिंक बन गया, ये एक टाइप का चेन बन गया, दिस इज कॉल्ड एज चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव्स। यानी अभी हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को पहले डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डीएस, यानी मैं क्या करूंगा सर, आप इन दोनों को साथ में लोगे, प्लीज लुक एट द डॉटेड पाथ, आप इन दोनों को साथ में लोगे, है ना, एंड व्हाट इज ds by dt, फिर ds by dt लोगे, व्हाट इज ds by dt स्टूडेंट्स, कैन आई राइट ऑन दिस इज v into dv by ds, क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Now can I say, sir, now v into dv is equal to a into ds, can I integrate both the sides, integration of v into dv, integration of a into ds, means what is integration of v into dv, what is integration of v into dv? So we will be constant. Initial velocity, now we'll put limits, initial velocity is u, final is v, students ये definite integrals we consider, are getting it? Initial displacement we consider is equal to what, we can take it as 0, final is s, I'll consider. Students, integration of v into dv means, can I say v square by 2, lower limit is u, upper limit is v, acceleration constant आएगा, what is integration of ds will be simply s. Now substituting the values, can I say v square, put the upper limit, students, put upper limit first, so v square by 2 minus u square by 2 is equal to a into s. So what's the final answer? V square minus u square is equal to 2as. Therefore, v square is equal to u square plus 2. This is your third linear kinematic equation. Since मैंने क्या मैंने यहाँ पे लिमिट्स डाल दिए, इंटीग्रेशन ऑफ v into dv सबको पता है कि v square by 2 होगा, फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x raised to n into dx, x raised to n plus 1 upon n plus 1. यहाँ पे प्लस सी नहीं आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, क्योंकि हम गोइंग फॉर डिफरेंट, दैट्स द बॉडी ट्रैवलिंग विद इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी इज v. तो फिर मैंने अपर लिमिट डाल दिया, फिर मैंने लोअर लिमिट डाल दिया, यहाँ पे 0 to s, तो सिंपली आई विल गेट s, 2 is the common LCM, I got the answer. यानी when I want to get a third equation, मैंने क्या स्टूडेंट्स, I simply use chain rule in derivatives. क्या all the three equations are clear to all of you students? Yes. Yes, sir. So please don't rub. Just give us. Okay, I'm not ready. Please, these are very important and you need to know this thing, students. इसमें आना जरूरी है, ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, यानी हमेशा भी ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन को कैसे बोलोगे, वापस में बोलो स्टूडेंट्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी को कैसे बोलोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन क्या है सर, इट इज आल्सो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब भी तुम डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जाते हो, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाते हो, तो यूज डिफरेंशिएशन, अगर तुम एक्सेलरेशन से वेलोसिटी जाते हो, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट जाते हो, तो यूज इंटीग्रेशन। ये तीनों किसके इक्वेशंस है, कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में जाता हो उनके लिए ही है स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर लीनियर मोशन, लेकिन विद एक्सेलरेशन कांस्टेंट, विद एक्सेलरेशन कांस्टेंट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए अगर तुम पहला डेरिवेशन लेते हो, तुम्हें पहला इक्वेशन चाहिए, तो a इज dv by dt लेते हो, dv को सब्जेक्ट बना दो, लिमिट्स डाल दो, तुम्हें पहला इक्वेशन मिलेगा। सेकेंड इक्वेशन को वापस तुमने क्या किया, v इज ds by dt, ds को सब्जेक्ट बना दो, मुझे s चाहिए, और फिर v को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, और फिर इंटीग्रेशन लेगा। तीसरे केस के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं ये पार्ट, तो यहाँ पे तुम्हें चेन रूल इन डेरिवेटिव्स, हमें फाइंड आउट करना, हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो वेलोसिटी विद टाइम, लेकिन मैंने क्या किया, एक चेन क्रिएट किया, मैं v to t नहीं जा रहा हूँ, मैं पहले v to s जा रहा हूँ, फिर s to t जा रहा हूँ, दैट इज व्हाट वी गो फॉर चेन रूल इन डेरिवेटिव्स। यहाँ पे फिर मैंने लिमिट्स डाल दिया, ये मत भूलना स्टूडेंट्स, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2। When you complete it, students, when you do this after the lectures, when they get over today itself, only students after getting time, उसको इसको देख के भी अगर वापस सॉल्व करना जरूरी है,
अभी तुम ऐसे प्रैक्टिस करोगे then it's going to help you, or otherwise it's not going to help you. Can I erase this now, students? मैं इसको erase कर सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Students are coming to their own comfort, it seems. Okay, students. Now we simply go for the graphical representation, students. Okay, let us understand graphical way of representing with respect to concept related to all your kinematics we consider. Okay, based on that, we'll be understanding students area under the graph, and we also try to understand students what exactly we consider is your slope of the graph, students. Okay, now please pay attention, students. To go ahead with it, students, ये एक hint समझ में रखना, students. As a note, you can keep in mind, students. Okay. Now, whenever you go for graph, students, मुझे ये बताओ x-axis पे क्या आता है, y-axis पे क्या आता है, students? Whenever you plot graphs between two physical quantities, so what do you prefer to take on y-axis and what do you prefer to take on x-axis? Time on x-axis. Pardon? Time on x-axis and velocity Time on on x-axis. y. Students, जब भी तुम see one thing, we are starting off with graphs part of it, और graphs बहुत जन ने पढ़े हुए students, अभी मैंने graph बताया था, लेकिन अभी हम actual graph का concept पढ़ रहे हो और ये तुम्हें आना चाहिए था students, lower standard से तुम पढ़ते आ रहे हो. अगर कभी भी हम ग्राफ पढ़ते हैं ना स्टूडेंट्स, तो ये y एक्सिस के ऊपर कौन से टर्म्स होने चाहिए, x एक्सिस के कौन से टर्म्स होने चाहिए स्टूडेंट्स? ऑन y एक्सिस ऑलवेज इट शुड बी डिपेंडेंट वेरिएबल, हमेशा, और यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होने की जरूरत है. ये ध्यान में रखना जरूरी है जब भी हम ग्राफ्स के बारे में पढ़ते हैं. y एक्सिस पे हमेशा स्टूडेंट्स डिपेंडेंट वेरिएबल्स होने चाहिए, x एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होने चाहिए. कौन किसके ऊपर डिपेंड होता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इन दिस केस. X-axis we simply consider as abscissa, y-axis we consider as ordinate. कभी भी हम coordinates के बारे में बात करते हैं तो it's x comma y we consider. Point of intersection of x comma y will be always equal to 0. Equation of x-axis y is equal to 0. Equation of y-axis x is equal to 0. ये सब तो तुमने ग्राफ में पढ़ा होगा, लेकिन यूज होता है स्टूडेंट्स फिजिक्स में. अगर तुम क्वाड्रेंट के हिसाब से जाते हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट हम एंटी क्लॉकवाइज में जाते हैं स्टूडेंट्स. मेजरमेंट ऑफ एंगल्स इज ऑलवेज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एज अ रेफरेंस फ्रेम. स्टूडेंट ध्यान से सुना, जब भी हम एंगल मेजर करते हैं हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रेफरेंस लाइन लेते हुए हमारे एंगल्स मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वेक्टर्स में क्या आएगा, थंब इज पॉइंटिंग इनटू योर आई एंड दैट इज पॉजिटिव. Anti-clockwise positive we consider, clockwise negative. Now whenever you speak about अगर suppose तुम ग्राफ के बारे में जो करते हो तो ये ध्यान में रखना, टाइम और मास को most of the times or what all the times we take it on x axis physics में. जैसे जैसे इज़ान ने शायद बोला time is always on x axis. Yes, because any other physical quantity depends. Now suppose अगर मैं suppose position time graph बोलता हूँ students, if I say position time graph, agreed?
या if I say displacement with respect to time graph, it's one of the same we consider. अगर मैं पूछूं velocity time graph, acceleration time graph, तो स्टूडेंट्स ये सारे टर्म्स कौन से हुए? ये जो सब टर्म्स है स्टूडेंट्स, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारे कौन से हो गए? डिपेंडेंट वेरिएबल्स। जहां पे टाइम आता है ये सारे क्या हो जाते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यानी इनको हम y एक्सिस पे लेते हैं, टाइम को x एक्सिस पे लेते हैं। क्या इतना क्लियर हुआ सबसे पहले स्टूडेंट्स? Yes. Okay. Now, when you speak about with respect to slope and area under the graph, ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ना प्लीज पे अटेंशन। सपोज अगर मैंने तुम्हें डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से सुनना, पहले हम लेते हैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम, फिर हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, एग्रीड। फिर मैं लेता हूँ वेलोसिटी, सॉरी, देन आई एम टेकिंग इट स्पीड versus time. Then I'm taking velocity versus time. And then I'm taking acceleration versus time. Okay, students? Students, मुझे बताओ तुम्हारा laws of motion complete हो गया? Students, Yes, sir. completed हो गया? हाँ students, laws of motion complete हुआ है? हाँ sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. work per energy complete हुआ है? No, sir. No, अभी sir. कौन सा चल रहा है? अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है तुम्हारे साथ में? Sir, work power Work energy. power energy चल रहा है सर, फर्स्ट लेक्चर में। ओके फाइन। अगर तुम्हारा लॉस ऑफ मोशन, चलो इसको सॉल्व करने से पहले मैं एक सिंपल तुम्हें क्वेश्चन पूछता हूँ स्टूडेंट्स। कैन यू टेल मी व्हाट एग्जैक्टली फोर्स इक्वेशन इज? is equals to m. F is equal to ma, father is equal to ma, ये तुम्हारा फोर्स इक्वेशन होगी, एग्रीड। अभी सपोज मैंने तुम्हें बताया स्टूडेंट्स, प्लॉट अ ग्राफ ऑफ फोर्स वर्सेस मास, फोर्स वर्सेस एक्सेलरेशन, मास वर्सेस एक्सेलरेशन। मुझे पता कौन किसको कहाँ पे लेगा, किसको y एक्सिस। अभी जरूरी नहीं कि मैंने यहाँ पे लिखा तो उसको y ही लेना है, ये तुम्हारे पे डिपेंड है। यानी एक तुम्हें ये समझना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इंडिपेंडेंट कौन सा है। तो अगर मैं फोर्स वर्सेस मास लूंगा तो स्टूडेंट्स मुझे बताओ किसको x एक्सिस पे लोगे, किसको y एक्सिस पे लोगे? फोर्स वर्सेस मास। फिर मास Mass को upon x Mass एक्सिस x में, axis पे फोर्स लेंगे। को y एक्सिस। यानी उसका मतलब क्या कि यार फोर्स डिपेंड्स ऑन मास भी कंसीडर, है ना? Yes, Yes, Change in sir. the change in force, the graph will be a straight line graph. Agreed? Yes, sir. अभी फोर्स वर्सेस एक्सेलरेशन, चलो फोर्स वर्सेस एक्सेलरेशन, किसको y एक्सिस पे लोगे, किसको x एक्सिस पे लोगे? सर फोर्स X को x upon एक्सिस पे acceleration। फोर्स को x एक्सिस पे लोगे, Sir, acceleration on x-axis. acceleration on x axis, and force on? Y axis. Okay, so acceleration depends, force depends on acceleration. Then Yes, change sir. in, Yes, sir. change in acceleration will bring change in force, or change in force will cause change in acceleration. So we can do either one ना? हाँ, दोनों भी सही रहेगा। तुम बॉडी को चलो दोनों कैसे सही रहेगा इज़हार, मुझे बताओ। तुम बॉडी को सर मतलब फोर्स accelerate, वेरी करेगा तो एक्सेलरेशन भी वेरी करेगा, या फिर हाँ। एक्सेलरेशन वेरी करेगा तो फोर्स भी वेरी रहेगा। अरे लेकिन एक्सेलरेशन वेरी कैसे करेगा? जब मास When a body set, when is the body set into motion? When a body set into motion, when the body is set to be accelerated, when you apply force, ना? हाँ तो डिपेंडेंट कौन हुआ, इंडिपेंडेंट कौन हुआ? ओके सर। Acceleration will be always a dependent variable. यहाँ पे force तुम्हारा independent हो गया। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? Yes, sir. कैसे लोकेट करना है तुम्हें वेरिएबल्स को, किसको कहाँ पे लेना है? I get it. That is more important when you are trying to go for graphical way of representation, students. So now when you speak about it, यहाँ पे मैंने distance time graph दिया students.
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है, वेलोसिटी। देखो हमारे में ये जो चैप्टर मेरा चल रहा है, यहाँ पे बहुत इजी हो जाता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे सारा में टाइम आ रहा है स्टूडेंट्स। ये तो सब एक्स एक्सिस भी आने वाले हैं। ये सारे कौन से वेरिएबल्स होंगे? वाई एक्सिस पे होंगे। तो स्टूडेंट्स ये सारे वेरिएबल्स विल बी ऑन वाई एक्सिस। दिस इज ऑन एक्स एक्सिस, दिस इज वाई proportional to x, y proportional to x, y proportional to x, y proportional to x। ना मुझे सिर्फ ये बताना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होगा और यहाँ पे एरिया अंडर द ग्राफ क्या होगा, सारे केस में। अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ लेता हूँ स्टूडेंट, तो स्लोप क्या होगा बताओ? चलो, before going for it, can you tell me what is the formula for slope, students? What exactly the formula for slope? x2 minus x1 by y2 minus y1. Okay, that is, we consider point slope form, we can consider। देखो अगर तुम slope का formula देखते हो students, तो please pay attention। Slope we consider is what? ध्यान से सुनना। Slope of any graph we consider is what? It's either inclination or declination we consider। यानी या तो चढ़ान या ढलान। Slope का मतलब क्या? If you see my hand in this manner, or if you see my hand in this manner, that's a slope। अगर मैंने मेरा हाथ सीधा रखा तो there is no slope। Simple। Yani, when I speak about slope, students, you should know what exactly slope we consider. Slope of a graph is actually what? It's y2 minus y1 upon x2 minus x1. Any two values on the y-axis to its corresponding values on the x-axis, its ratio is a slope. If I give you slope in other way also, y is equal to mx plus or minus c. Students, अगर मैंने straight line graph दिया, ये जितने भी तुम्हारे फिजिक्स में जब भी तुम यहाँ पे करो इनिशियल स्टेजेस में स्टूडेंट्स, तुम्हें स्ट्रेट लाइन ग्राफ ज्यादा मिलेंगे। y is equal to mx plus some minus c। स्टूडेंट्स ये c क्या है? y इंटरसेप्ट प्लस माइनस m क्या बन जाता है स्टूडेंट्स? m बन जाता है स्लोप। स्लोप इज इक्वल टू m। c क्या बन जाएगा? y इंटरसेप्ट। ये ध्यान में रखना। If in case if I happen to go for gradient, friends, gradient is nothing but tan theta। tan theta will be equal to what? Opposite upon adjacent। यानी कभी भी कोई भी ग्राफ तुम लोगे ना, सपोज अगर मैंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ लिया स्टूडेंट्स, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो मुझे बताओ tan थीटा मुझे निकालना, तो ये मेरा थीटा हो जाएगा ना। What is tan theta, students? What is tan theta? Change in the value of y to the change in the value of x। यानी ये क्या होगा? डेल्टा y by डेल्टा x। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? देखो tan थीटा क्या होगा? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। हाँ स्टूडेंट्स, क्या ये क्लियर हुआ? Yes. Yes, sir. Yes, sir. इंटरेस्ट tan थीटा डेल्टा y by डेल्टा x। या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y2 minus y1 upon x2 minus x1 भी लिख सकते हो। यानी ग्रेडियंट बोलो तो सिंपली भी गो फॉर एंगल। ये देखो ये चढ़ान, अगर मैं ऐसे भी लिखता तो ढलान हो जाएगा, तो वो भी तो स्लोप है। वन इज इंक्रीजिंग स्लोप, वन इज डिक्रीजिंग, यानी वन इज पॉजिटिव स्लोप, अदर वन इज नेगेटिव स्लोप। अगर तुम कोई भी ग्राफ देखते हो स्टूडेंट, ये ध्यान में रखना, अगर ये ग्राफ ऐसे जाता है तो उसका मतलब ये पॉजिटिव स्लोप हुआ। अगर यहाँ पे ऐसे पैरेलल चला गया to x axis, so slope is zero। slope is zero। लेकिन अगर तुम्हारा ग्राफ नीचे की तरफ आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ? नेगेटिव स्लोप। ये पॉजिटिव स्लोप, जीरो स्लोप, नेगेटिव स्लोप। ये है चढ़ान, ये है ढलान। That is what we call as any kind of an inclined plane we consider as a slope। अभी यहाँ पे मैं सपोज मैं AB देता हूँ स्टूडेंट्स, ये BC देता हूँ और ये CD देता हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पे अगर मैंने स्लोप निकाला तो AB मेरा होगा, ये तुम्हारा y2 होगा y1 x2 minus x1, ये तुम्हारा होगा थीटा। लेकिन इसके तो स्लोप बनता ही नहीं है ना, ये तो हॉरिजॉन्टल जा रहा है स्टूडेंट्स। मेरा y2 minus y1 भी जीरो इटसेल्फ ओनली, दोनों वैल्यू सेम ही है क्योंकि ग्राफ पैरेलल चला गया। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, स्लोप sir. का मतलब Yes, sir. एरिया अंडर द ग्राफ क्या होगा स्टूडेंट्स? एरिया अंडर द ग्राफ क्या होगा? एरिया अंडर द ग्राफ विल बी सिंपली बी कंसीडर्ड एज द एरिया ऑफ द ज्योमेट्रिकल शेप स्टूडेंट्स। अगर किसी ने पूछा व्हाट इज एरिया अंडर द ग्राफ, फ्रेंड्स व्हाट इज एरिया अंडर द ग्राफ, तो एरिया अंडर द ग्राफ के लिए तुम क्या बोलोगे? एरिया ऑफ ज्योमेट्री। अभी देखो ये तुम्हें ज्योमेट्रिकल शेप। यस फरहान, फरहान you have raised hand, what is that? Sir, will the perpendicular be uh, The area under the graph,
Look, what kind of a geometrical shape you see over here, students? ये कौन सा geometrical shape दिखाई दे Area रहा of trapezium. है? Area of trapezium. Students, there are दो students हैं जो इसको solve कर सकते हैं. वो क्या करेगा सर? एक triangle है, एक rectangle हुआ और एक triangle हुआ. यानी area of first triangle, area of rectangle, area of triangle, तीनों को add करेगा तो area under the slope. Under the slope, within that particular part. Are you getting it? Yes, sir. कोई क्या use करेगा? Simply area of trapezium. Are these two parallel sides? Yes. Is this the perpendicular height? Why not? What's the formula of area of trapezium? Half the sum of parallel sides into height. यानी students, area under the slope अगर तुम्हें निकालना है तो तुम्हें geometrical shape देखना है, graph का geometrical shape देखना है. क्या वो shape rectangle है? क्या वो shape square है? क्या वो triangle है? क्या वो trapezium है? क्या उसमें circle आ रहा है? क्या उसमें ellipse आ रहा है? ये सब तुम्हें देखना है. उससे तुम find out कर सकोगे. So now when I speak about with respect to area under the graph, students, then simply the area of shaded portion we consider. So now the second part, if I happen to consider इस slope के बारे में, students, अगर मैंने पूछा area under the graph, तो क्या होगा? Area of geometrical shape. That's how we consider. यानी अगर तुम simple terms में लोगे ना students, ध्यान से सुनना. Slope is nothing but a ratio of y by x. Students, slope is nothing but ratio of y by x. Area under the graph will simply speaks about product of y coordinate and x coordinate. ये ध्यान में रखना. ये तुम्हारा एक बेसिक हो गया स्टूडेंट्स. जब भी हम रेशियो लेते हैं y और x का, तो वो मुझे प्रिसाइजली स्लोप के बारे में बताता है. स्लोप देता नहीं, लेकिन स्लोप के बारे में तुम्हें इंफॉर्मेशन देगा. लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट ले लेता हूं तो वो हमेशा मुझे एरिया के बारे में बताएगा ना. अगर मैंने सपोज मैंने पहला वाला ग्राफ लिया स्टूडेंट्स, मैंने पहला वाला लिया. Can you tell me students over here what exactly slope and what exactly area will be? तो क्या करोगे तुम? स्टूडेंट्स क्या करोगे? तो कोई भी स्टूडेंट whose y सिनाफिल से सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये y एक्सिस पे है, ये x एक्सिस पे है, आपने बोला स्लोप. सर आप ग्राफ तो नहीं बना रहे हो यहाँ पे, आपने ग्राफ तो नहीं बनाया, लेकिन फिर भी आप बोल रहे हो कि स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या होगा. तो सर स्लोप ऑफ द ग्राफ में तो मैं डायरेक्टली आपका यही कंसेप्ट लूंगा. यानी अगर कभी मैं y और x का रेशियो लेता हूँ तो वो स्लोप हो जाता है, y और x का प्रोडक्ट लूंगा तो वो हो जाता है एरिया. तो y और x का स्लोप, ध्यान से सुनना, y और x का स्लोप का क्या होगा? डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड इन मीटर, टाइम इज ऑलवेज मेजर्ड इन सेकेंड. ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी होगा? स्पीड. समझ में आ रहा है? यानी स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बनेगा? Speed. Speed. दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. ये एक फिजिकल क्वांटिटी मुझे मिल गया, लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट लेता हूं उसका मतलब सर मीटर इनटू सेकेंड. डू यू हैव एनी फिजिकल क्वांटिटी मीटर इनटू सेकेंड? No, sir. मीटर इनटू सेकेंड? नॉट एट ऑल. सो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. यानी अगर किसी ने पूछा व्हाट इज एरिया अंडर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सीधा आंसर होगा नॉट पॉसिबल. क्या ये क्लियर हुआ तुम्हें? Yes, sir. Yes, sir. अभी देखो, अभी तुम्हारा इजी हो जाएगा. अभी देखो, इसको देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्टूडेंट्स. अभी इसके बारे में बात करते हैं. यहाँ पे बता सकते हो स्लोप क्या होगा, Velocity. एरिया क्या होगा? Displacement is always measured in meter. Time is measured in second. तो ये क्या होगा? Velocity. Velocity. क्या ये speed आएगा? यहाँ पे No, speed sir. आएगा? No, क्योंकि ये कौन सा physical quantity है? Is it scalar or vector? Vector. यहाँ पे तुम्हारा velocity आ जाएगा. Friends, it's very easy. Just keep in mind which is the physical quantity. Now, if I happen to go for product of meter into second, is it possible? Not possible. Not applicable. Area is not applicable. Now, if I happen to go for the third part of it, slope, area, speed, meter per second upon time second, meter per second square. Is slope of speed and time is possible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Acceleration.
So my dear, acceleration is a scalar or vector? Vector. So is it a ratio of speed and time or velocity and time? Velocity and time. Velocity. Velocity. Slope for speed and time. Speed and time not applicable or not possible. तो समझ में आ रहा है students? Look at the physical quantity, look at the scalar part and the vector part of it. यही चीज यहाँ पे possible होगी ना students? क्यों टेंशन ले रहे हो? यहाँ पे स्पीड टाइम वेलोसिटी टाइम में क्या होगा सर? y by x तो मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हाँ सर, यहाँ पे पॉसिबल होगा एक्सेलरेशन. सही है ये. स्लोप इज पॉसिबल फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो समझ में आया ना अभी? Yes, sir. Yes, sir. Scalar. लेकिन अगर मैंने एरिया अंडर द ग्राफ लिया, एरिया का मतलब क्या? प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ सर? ये मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय टाइम इन सेकेंड. अभी देखो सेकेंड सेकेंड विल गेट कैंसिल. आंसर आ रहा मीटर. कौन सा फिजिकल क्वांटिटी होगा बताओ? Distance. Distance. डिस्टेंस, क्योंकि ये स्केलर है स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा डिस्टेंस. यानी अगर किसी ने पूछा व्हाट इज एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ स्पीड एंड टाइम? डिस्टेंस. व्हाट इज द स्लोप ऑफ स्पीड एंड टाइम? नॉट पॉसिबल. व्हाट इज स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ? एक्सेलरेशन. व्हाट इज एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ? Displacement. Placement. अभी तुरंत आंसर दे रहे हो. मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड. लेकिन तुम्हें जब एरिया निकालना है तो स्टूडेंट्स y इंटू एक्स मत करना. गो फॉर द ज्योमेट्रिकल शेप. स्टूडेंट्स अभी मुझे बताओ, अगर तुम्हारा शेप स्क्वायर आया, अगर तुम्हारा शेप रेक्टेंगल आया, अगर तुम्हारा शेप ट्रेपीजियम आया, तो तुम क्या यूज करते हो? प्रोडक्ट ही तो ले रहे हो. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम? हाफ द सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट ना. तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का प्रोडक्ट आ गया. स्क्वायर लोगे तो एल स्क्वायर आ जाएगा. दिस इनटू दिस प्रोडक्ट आ गया. एक तो एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का. रेक्टेंगल लोगे तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये भी तो प्रोडक्ट आ गया. लेकिन एरिया लेना है तुम्हें स्टूडेंट्स, एरिया अंडर ग्राफ. ये सिर्फ हमने क्या किया है? वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हिच फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स स्लोप, व्हिच फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स एरिया. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. सब नोट करना है. क्या बोल रहे हो? इज दैट नोट करना है. बी लाउड, आई डिडंट गेट यू. नोट करना है सर. अच्छा, नेक्स्ट वन का आंसर दे रहे हो? नहीं, नोट करना है ना. सुनाई नहीं दे रहा है सर? बरोबर सर क्लियर बोलो. नोट करना है क्या पूछ रहा है? अच्छा वेट अ मिनट, पहले कंप्लीट तो करने दो. अभी इसका बाकी है एरिया. व्हाट इज एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ? Displacement. Yes, that will be displacement. We had distance. Now, if I happen to go for acceleration versus time, what is slope and what is area? Velocity. तो देखो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन सेकेंड रेशियो. क्या स्लोप इज पॉसिबल? Not possible. No, sir. मीटर पर सेकेंड क्यूब नॉट पॉसिबल. So not possible. But is area possible? Yes, sir. कौन सा फिजिकल क्वांटिटी आएगा? Velocity. Velocity. वेलोसिटी. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. Kindly note this part very clearly. Any students please pay attention. जब भी तुम ग्राफ के बारे में पढ़ो तो ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, व्हाट एग्जैक्टली ग्राफ के अंदर क्या होता है. वाई एक्सिस पे हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट होते हैं. Equation of y-axis is x is equal to 0. Equation of x-axis is y is equal to 0. Always we try to measure an angle in the anti-clockwise direction with positive x-axis as a reference frame, students. When you go for slope, y2 minus y1 upon x2 minus x1, it's a ratio. Any equation which is in the form of y is equal to mx plus or minus c, it's an equation of straight line, where m stands for slope. Students, where यहाँ पे equation of straight line में m stands for slope. And plus or minus c is a y-intercept. चलो ये तो मैंने equation दी थी. Students, can you give me equation of a projectile? Students, path parabolic. What is an equation of parabola? तो हम लोग ने क्या बोला था? Y is equal to ax plus or minus Bx bx. square.
Now, if I ask you, can you give me an equation of a trajectory, equation of a projectile for a particle moving, it's ground to ground projectile, तो क्या formula था? कुछ याद आ रहा है किसी को? X tan theta 1 minus x by r. ये x tan theta minus g x square upon 2 u square cos square theta. ये देखो भूल गए हो? सर ये नहीं बताया था। हाँ, ये नहीं बताया पियो? हाँ पियो? I mean, I have not written. माय डियर, इसका डेरिवेशन कर चुके हैं हम, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल using the equation s is equal to ut plus half at square displacement along y-axis. We found out the time, and time along for the entire journey we consider is equal to u हाँ cos हाँ theta yes by. sir, yes sir, sorry. यानी पियो तुमने 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 प्रोजेक्टाइल मोशन को टच भी नहीं किया है। कब No से sir, चिल्ला I रहे हो have. प्रोजेक्टाइल नहीं ठीक, देखो मेरा हाथ भी तुम्हें टच नहीं होता, देखो टच नहीं किया तुमने, ये तो कैसे सहारा ऐसा टच भी नहीं किया तुमने, नॉटी गर्ल। ऐसे मत करो, go on revising it if you don't revise, क्योंकि one thing I'm telling you very clearly students, काइनेमैटिक्स ये ऐसा चैप्टर है जहाँ पे चलो इक्वेशंस ऑफ मोशन तक तो सी सिंपल है, लेकिन जैसे तुम प्रोजेक्टाइल वगैरह में जाओगे तो वहां पे तुम ये वॉलेटाइल है स्टूडेंट्स, क्योंकि पहले सबसे पहले तुम पहली दफा कर रहे हो और ये वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब इट विल इवेपोरेट फास्टर, याद नहीं रहेगा, इसको बार बार करने की जरूरत है। एक दफे समझने के बाद में एक कंसिस्टेंसी रखना जरूरी है स्टूडेंट्स। यू एज अ स्टूडेंट यू नो what kind of a person are you. You know yourself very well. If you don't touch physics, if you don't go through a particular concept regularly, you tend to forget it. ऐसा थोड़ी करके याद रहने वाला है, फिर what होगा now for you, then it becomes tough कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये टफ है, फिर तुरंत वो ब्लेम गेम शुरू हो जाता है स्टूडेंट्स, और ये वॉलेटाइल है। Even good students, if you ask any 12th standard students also instantly to ask, a few of them may not be able to answer still projectile के questions. लेकिन जो उसको कंसिस्टेंसी में प्रैक्टिस भी करते हैं, whether the teacher tells you to do it or not to do it, students, you should sit across and do it. तभी जाके तुमने कुछ मॉडल में से कुछ क्वेश्चंस मार्क करके रखे हुए या कुछ अच्छे सवाल एग्जांपल्स, उसको कंसिस्टेंसी में रिवाइज करते रहो। वो तुम्हारे में होना चाहिए कि नहीं मुझे करना, भले वो टीचर बोले या नहीं बोले। Studies are like this, students. 11th and 12th studies are in this manner. It's not like that every time the teacher has to impose onto you all. तो ये तुम्हारा स्लोप आ गया स्टूडेंट्स। ग्रेडियंट tan थीटा भी कंसीडर। जब भी तुम स्लोप लेते हो तो ट्राई टू, अगर स्लोप में तुम्हें कौन सा फिजिकल क्वांटिटी आता है स्टूडेंट्स, ये जो मैंने लिखा है ना, ये सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी के लिए, तो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी आता है तो रेशियो लेना है। एरिया इज एरिया ऑफ द ज्योमेट्रिकल शेप, एरिया अंडर द ज्योमेट्रिकल शेप। प्रोडक्ट लोगे तो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी आता है। Distance time, displacement time, speed time, velocity time, acceleration time, what is slope and what is area. Just put down this information, students. And if you finish it off, let me know.
Yes, students can erase it now. Yes, sir. Yes, sir. Now, students, you have to tell me what exactly each graph represents. So this is we consider as position time graph. Momentum. Momentum, position time graph. See, students, position. Speed or Yeah, velocity. I'm giving you a Sir, graph. what is your question? I'm giving you graph, students, for position time graph. Position time graph, that means at a particular time, where is the position of the body is. Okay, one can take it in terms of displacement also we can consider. यानी अभी मैं ये ग्राफ दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, एक ही मैं बहुत सारे ग्राफ दे रहा हूँ. You have to tell me what exactly each graph represents. ये x axis है, y axis dependent variable, x axis independent variable, ये 0 है. यहाँ पे तुम्हारा पोजीशन होगा और यहाँ पे तुम्हारा टाइम. मुझे हर एक ग्राफ के बारे में बताना स्टूडेंट्स, व्हाट ईच ग्राफ रिप्रेजेंट्स. लेट अस से दिस इज ग्राफ 1, दिस इज ग्राफ 2, this is graph 3, this is graph 4. Each graph, what is it, what exactly it represents. This is graph 5, this is graph 6, this is graph 7, this is graph 8, this is graph 9, this is graph 10. Now I'm giving you 3 minutes students. हर एक ग्राफ तुम्हें क्या रिप्रेजेंट करता है, यानी जब भी तुम्हें समझना हो ना स्टूडेंट्स, इसके आंसर्स चाहिए तो मेरा मतलब क्या, मैंने क्या किया मालूम है, आई हैव ट्राइड टू टेक 10 ग्राफ्स इन वन. अगर तुम्हें आंसर देना तो तुम क्या करो, छोटे छोटे ग्राफ तुम बना दो ना. पहला ग्राफ यानी ये है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस. पहला ग्राफ का आंसर यहाँ पे होगा पोजीशन टाइम ग्राफ यानी एक्स एन टी या एस एन टी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. सेकंड वाला के लिए क्या होगा, हाँ सर सेकंड वाले के लिए ऐसे जा रहा है, ये सेकंड वाला ग्राफ ये होगा, ये फर्स्ट ग्राफ होगा. तो तुम इंडिविजुअल ग्राफ के बारे में, हर एक के बारे में यू कैन गिव एन आंसर. तुम्हें ये पता है एरिया अंडर द ग्राफ क्या होना चाहिए, स्लोप क्या होना चाहिए, तुम्हें क्या ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है. अगर मैंने तुम्हें कोई ऐसा ग्राफ दे दिया स्टूडेंट्स, पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्टूडेंट्स मैंने ऐसा ग्राफ दे दिया ओके एग्जामिनेशन में, और फिर मैंने पूछा व्हाट डज दिस ग्राफ रिप्रेजेंट, तो तुम्हें आना चाहिए ये ग्राफ किसके साथ में रिप्रेजेंट होता है, स्टूडेंट्स ऑफ ग्राफ के साथ में रिप्रेजेंट होता है. तो ये क्या बताता है, क्या बोलना चाहता है ये फिफ्थ ग्राफ. दैट इज व्हाट आई वांटेड फ्रॉम यू. एंड देयर आर ऑल टुगेदर 10 graphs I've given. So what each and every graph represents. I'm giving you 3 minutes for it. Think and give answer. Friends, क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ अभी? हाँ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. So now you have to answer for this first graph, second graph, third graph, fourth graph, fifth graph, sixth graph, seventh graph, eighth graph, ninth graph, tenth graph.
think properly students, try to take individual graph और सोचते रहो कि टाइम जब आगे बढ़ता है तो पोजीशन क्या हो रहा है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, क्या बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्या बॉडी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्या मोशन एक्सेलरेटेड है, मोशन रिटार्डेड है, मोशन एक्सेलरेटेड नेगेटिव डायरेक्शन में है, मोशन रिटार्डेड नेगेटिव डायरेक्शन में, सब कुछ समझना है ध्यान से, थोड़ा सा सोच समझ के यू ट्राई टू गेट एन आंसर योरसेल्फ। और यही चीजें स्टूडेंट्स तुम्हारे तुम्हारे एमसीक्यूज में आती है, तुम्हारे टेस्ट में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस फिर आएंगे, अलग अलग टाइप के। Come on, Vruti, Zaveri, Vruti, what are you doing? वाला एक बार फिर से बनाओ ना, क्या क्या बोल रहे हो? 10th वाला। 10th वाला ग्राफ ऐसे वी शेप में दिया है, बस क्या है दिखाता हूँ। ये यानी ये ऐसा ग्राफ है, यानी अगर मैं सेपरेटली ड्रॉ करूँ तो ये ऐसा है। पोजीशन टाइम ग्राफ अगर मैं दिखाता हूँ तो ऐसा ग्राफ, एक ही ग्राफ। क्या देखा? Okay, students, shall we discuss now? Sir, 3 minutes have not completed. क्या बोल रहे हो? Sir, 3 minutes have not completed. अच्छा, पूरा 3 मिनट चाहिए पीयू को। Yes, पीयू, वही तो मैंने बोला। Okay, students, let's discuss. Let me start. First one. What exactly first graph speaks about? Object is at rest. Rest. Object is at? Rest. Of Rest. course. Object is at rest or particle at rest. Motion ही नहीं है students. देखो ना, टाइम बढ़ रहा है, अगर मैंने टाइम को बढ़ा दिया स्टूडेंट्स, टाइम इज इंक्रीजिंग, लेकिन पोजीशन बढ़ ही नहीं रहा है, जीरो दिखा रहा है स्टूडेंट्स, है ना? क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सेकंड पार्ट, अभी जब इसका इसका एग्जांपल तुम कैसे दोगे स्टूडेंट्स? इसका एग्जांपल, हाउ टू अंडरस्टैंड दिस ग्राफ्स, यू नो? फॉर एग्जांपल, यू एंड योर फ्रेंड डिसाइडेड टू गो टू आईआईटी हब्स, ओके, नियरेस्ट सेंटर में तुम्हारे आईआईटी हब्स में जाने के लिए। तुम तुम्हारे घर पे है, पीयू अपने घर पे है, लेट्स सोचो कि पीयू अपने घर पे, उसकी फ्रेंड नीचे आती है और बोलते कि लेट अस गो फॉर आईआईटी हब। Are you getting it? That friend of PU waits for 2 minutes. PU doesn't come down. She waits for 5 minutes. She doesn't come out.
waits for 8 minutes, doesn't come out, 10 minutes, doesn't come out. And then she calls up, you, are you coming? She says it no. So particle यहाँ पे कौन सा object क्या हुआ? PU is not in motion. She's at rest. I getting it? उस लड़की ने पूछा क्यों भाई तुम्हारा दवाई का लेक्चर इसलिए नहीं जाना है ना? समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? Yes, sir. हंसो हंसो हंसो, यानी जो अंदर की बात होती है ना स्टूडेंट्स, जो अंदर की बात होती है ना वो सीधा ऐसा मुंह पे आ जाता है करके. ओके, सेकंड ग्राफ क्या है? Motion in a straight path. अभी सेकंड ग्राफ देखो, अभी क्या Not किया change हुआ with वापस? velocity. हाँ क्या बोल रहे हो? Velocity remains constant. हाँ नहीं मेरे भाई, इधर अभी वापस देख. अभी क्या किया मालूम है? अभी पीयू उसके फ्रेंड के यहाँ पे गई, यानी पीयू ने क्या किया मालूम है? पीयू ने यहाँ से यहाँ तक उसने डिस्टेंस कवर किया. उसने हाँ. यहाँ से अपने घर से डिस्टेंस कवर किया एंड शी स्टैंडिंग बिलो अ पर्टिकुलर बिल्डिंग वेयर अ फ्रेंड इज स्टेइंग. नाउ शी इज स्टैंडिंग डाउन अ फ्रेंड्स प्लेस. शी स्टूड फॉर 2 minutes. उसका फ्रेंड बाहर नहीं आ रहा है. 5 minutes, the friend is not coming down. 10 minutes, the friend doesn't come out. PU called her up. अरे चल भाई लेक्चर पे भी Rest जाना है. है. हाँ तो उसके फ्रेंड ने बोला यार वो दवाई का लेक्चर है नहीं आते, है ना? यानी दोनों केसों में बेचारे दवाई की तो बैंड है. देखा नेहा ने अपने आंसर सारे डाल दिए. देखा नेहा ने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे के आंसर दे दिए. तो स्टूडेंट सेकंड वाला भी एट रेस्ट. क्या समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? थर्ड वाले का आंसर क्या होगा? सर थर्ड वाले के लिए इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू 0. द बॉडी इज हैविंग सम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट. लेकिन क्या हो रहा है? इज द बॉडी कवरिंग इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो कौन सा है? द बॉडी इज मूविंग विद व्हाट स्टूडेंट्स? Uniform velocity. Uniform velocity. Velocity. Uniform velocity, but in positive direction or negative direction, students? Positive. Positive direction. Positive direction. Okay, so the particle is moving along what, students? The particle is moving, or the body is moving with uniform velocity in positive direction. Agreed. वही फोर्थ वाले को देखो, नीचे की तरफ आ रहा है. Is it uniform or non-uniform? Students पहले बताओ. Uniform. Velocity in negative Think about uniform velocity, but what? Uniform velocity in what? Negative direction. Negative. Yes, in negative direction. Are you getting it, students? क्या ये चार समझ में आया स्टूडेंट्स? Yes, Yes, sir. sir. अभी Yes, मैंने sir. स्टूडेंट्स मैंने यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या बोला? क्योंकि हम स्लोप निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स. पोजीशन का मतलब आई कैन टेक इट एज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. तो मुझे बताओ थर्ड का स्लोप क्या आएगा स्टूडेंट्स? ये देखो ये स्लोप आ जाएगा y2 minus y1 x2 minus x1. So what exactly is slope of displacement time graph? Velocity. लेकिन ये पॉजिटिव स्लोप, ये नेगेटिव स्लोप. समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन ले लिया मैंने. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. What does the fifth graph speaks about? So slow. Moving with uniform acceleration. Constant change. Friends, acceleration is constant. ये कभी पढ़े हो स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स, ऐसे ग्राफ कभी पढ़े हो? हाँ, फिफ्थ sir. वाला Parabolic. कहाँ पे बताओ? Quadratic. Louder, Izhar, not able to get you. Yes, students. Students, this already you have learned it in your class 9th. Displacement time graph we consider for the fifth one will give you uniform acceleration. इसी का अगर मैंने velocity time graph बनाया students, ये graph को देखते हुए तो my velocity time graph will be what? A straight line graph, but not passing through origin at an angle theta with the horizontal, students. और ये बताता है uniform acceleration. Students, कुछ पता है तुम्हें? Sir, कुछ नहीं मालूम है? समझा. नहीं समझेगा. Students, मुझे बताओ चलो. Can anybody plot graphs for
ध्यान से सुनना, I want graphs for displacement versus time for a body having a free fall. चलो इसको मारो गोली। सारे स्टूडेंट्स मुझे ग्राफ ड्रॉ करके बताओ। कोई भी ऑब्जेक्ट को मैंने ड्रॉप कर दिया है वर्टिकली डाउनवर्ड स्टूडेंट्स, मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। चलो कोई प्लॉट करके बता सकता है फॉर अ बॉडी हैविंग अ फ्री फॉल? चलो एनीवन? आई वांट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। हाइट से ड्रॉप होगा ना? अब द बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा, जैसे टाइम बढ़ेगा तो उसका स्पीड डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। चलो कर सकते हो कोई? और स्टूडेंट्स ये चीज तुम कहाँ पे पढ़ चुके हो? 9th स्टैंडर्ड में। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कंसेप्ट तुम पढ़ चुके हो। इक्वेशंस ऑफ मोशन इन क्लास 9th, वहां पे तुम्हारे बुक के अंदर इसके ग्राफ्स भी दिए। फॉर अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, व्हाट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन टाइम? कोई ये तीनों ग्राफ बना सकता है स्टूडेंट्स? फास्ट, कम ऑन नेहा, वेटिंग फॉर यू नेहा, आंसर। नेहा ने सारे आंसर दे दिए स्टूडेंट्स, 8 तक दे दिए, 9th और 10th बाकी है। नेहा इसका आंसर दे के बताओ। कोर्स नेहा, लेकिन कैसे होगा? कर्व अपवर्ड्स और कर्व डाउनवर्ड्स? Sir, upwards. वेरी गुड। अभी माइक तो चालू है तुम्हारा नेहा, उल्लू बना रहे हो, उल्लू बनावें। No, sir, in between sometimes it doesn't work. हाँ हाँ, उल्लू बनावें, उल्लू बनावेंगे। हाँ बहुत No, स्मार्ट है। पियो sir. पियो 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 पियो, नेहा बहुत स्मार्ट है ना? ओके स्टूडेंट्स, शी गॉट करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स ये देखो, ये ग्राफ अगर तुम बोलोगे ना, स्टूडेंट्स इट्स वेरी इजी ग्राफ। ये क्या है, मैंने क्या पूछा स्टूडेंट्स? फॉर अ बॉडी फॉलिंग वर्टिकल, अगर तुम्हें इसको ग्राफ बनाना है स्टूडेंट्स, तो गो ऑन टू योर इंस्टिंक्ट्स, जो तुमने सीखा उसी के ऊपर करो ना। तुमने ये इक्वेशन ऑफ मोशन सीखा है कि नहीं सीखा स्टूडेंट्स? S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये इक्वेशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम करना चाहिए, तो क्यों नहीं तुम समझते हो स्टूडेंट्स? यार बॉडी को जब भी तुम, अभी देखो ये मैं लिखा दूंगा, बॉडी को अगर तुम्हें नीचे लेना है सुविधा से सुनना, तो यहाँ पे टाइम लेता हूँ, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। अगर टाइम जीरो होगा स्टूडेंट्स, टाइम अगर जीरो होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा। लेट अस से द इनिशियल स्पीड इज आल्सो जीरो। आर यू गेटिंग इट? इनिशियल जब भी ड्रॉप करोगे तो यू तो जीरो ही होगा ना। अगर टाइम जीरो होगा तो डिस्प्लेसमेंट, अगर टाइम को मैंने 1 सेकंड लिया स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी क्या होगा? 9.8। हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. Now, is it falling vertical downwards? Yes. For vertical motion, what exactly acceleration to gravity? I can take it as negative. अगर तुम नहीं लोगे तो नहीं चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 9.8 स्टूडेंट्स, हाफ इंटू 9.8 क्या आंसर आ रहा है? 4.9, यानी एस का आंसर क्या आया? 4.9। दिस इज फॉर एट द एंड ऑफ 1 सेकंड स्टूडेंट्स। अगर मैंने 2 सेकंड्स लिया, 2 स्क्वायर कितना होगा? 4। तो 4 इंटू 4.9 कितना होगा? व्हाट इज द आंसर? हाँ स्टूडेंट्स, तो क्या आंसर आएगा? 4। 19.6. हाँ तो ये कितना होगा? 19.6 आ जाएगा स्टूडेंट्स। एग्रीड? Yes. At the end of 2 seconds, at the end of 3 seconds क्या होगा? 3 square is 9, 9 into 4.9। तो देखो 9 9 are 81, 9 4 are 36, 44.1 आ रहा है। 44.1. यानी तुम्हारा ग्राफ ऐसा जाएगा कि नहीं जाएगा? चलो ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो ऐसा जाएगा, लेकिन ग्राफ कर्व आएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. अभी इसी का मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ चाहिए। नया वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या आएगा? बोल सकते हो? वेलोसिटी टाइम ग्राफ
हाँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे निकालोगे? क्या करोगे? b equals to u plus u. Yes, v is equal to u plus at. I'm going to use that equation only. v is equal to u plus at. यानी सर आप अभी v और t के बाद तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ये 9 पॉइंट, यानी अगर सपोज में 0 सेकंड से रहता तो 0 होगा। 1 सेकंड के लिए क्या होगा? 9.8। 2 सेकंड के लिए कितना होगा? 19.6। 3 सेकंड्स के लिए क्या होगा? 29.4। तो तुम्हारा ग्राफ ऐसा आएगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। स्टूडेंट देखो ना, डिफरेंस सेम है, 9.8 का डिफरेंस है, 9.8 का डिफरेंस है, 39.2, 9.8 का डिफरेंस है। तो समझ में आ रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे होगा? Yes, sir. Yes, sir. एक्सेलरेशन क्या होगा? व्हाट इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ? बोले तुम बोले ना सर फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कैन आई से दिस इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कांस्टेंट। क्या ये क्लियर हुआ? डिस्प्लेसमेंट से मुझे वेलोसिटी मिला, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन मिला। हमारा कौन सा ग्राफ था? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। तो कौन सा ग्राफ था? ये वाला ग्राफ था, यानी फिफ्थ वाला ग्राफ दिखा रहा है। देखो फर्क क्या है, फर्क क्या है ये ग्राफ में और ये ग्राफ में। तो ये ग्राफ में सर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 से शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बॉडी हैज कवर्ड सम डिस्टेंस या सर्टेन डिस्प्लेसमेंट एंड देन द ग्राफ स्पीक्स। So what exactly your fifth graph speaks about? What exactly fifth graph speaks about? The body is moving with uniform acceleration. समझ में आ रहा है? The body is moving with what? Uniform acceleration. Uniform acceleration. क्या ये क्लियर हुआ? How to understand graphs? Yes, sir. Because all of you are not teaching 2 or 3 students. Please, Yes, sir. all of them. All of them. Don't just blindly say yes. There are some students now, the time is get half an hour left and then just 30 students. This is what the problem with the coaching is. Students just enter inside and they just leave to their comfort. मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी है ना स्टूडेंट्स। मैं अपनी शादी में नहीं जाऊं, मैं अपनी शादी में नहीं जाऊं, मेरी मर्जी। इट्स गोइंग ऑन लाइक दैट, स्टडीज आर हैपनिंग इन दिस वे। और फिर ऑनलाइन को ब्लेम करते हो कि बिकॉज ऑफ ऑनलाइन वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, कीप इट ऑफलाइन। स्टूडेंट्स अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो उसी से हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिला, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मिला, तो फिफ्थ वाला इसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये मेरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। ओके, अभी मुझे बताओ स्टूडेंट्स, क्या ये सारे ग्राफ will you consider to be correct for a freely falling body? Students? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अभी मुझे बताओ, for a freely falling body, is a body has a displacement in the vertical upward direction or vertical downward direction? Downward. Downward. So is displacement a scalar quantity or vector quantity? Vector. Vector. And if it is downward direction, then in that case your displacement should be positive or negative. 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 Should my graph should be in the first quadrant or should my graph should be in the second quadrant, third quadrant or fourth quadrant? Third and fourth. Fourth. थर्ड एंड फोर्थ कहाँ से आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएगा। अरे हाँ सर, मतलब उधर साइड है। ये क्या है? तो तुम्हारा ग्राफ ऐसा आएगा, ये होगा तुम्हारा। समझ में आ रहा है? एक्चुअल ग्राफ ये होना चाहिए। स्टूडेंट्स जब भी तुम ध्यान से सुनना, अभी ये भी मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, जब भी तुम स्लाइटली एचएससी की बुक्स वगैरह देखोगे ना या कोई दूसरी बुक देखोगे तो तुम्हें ये ग्राफ दिखाई देंगे, और ये ग्राफ उन्होंने दिए होंगे शायद फॉर अ बॉडी फॉलिंग वर्टिकल डाउनवर्ड्स। लेकिन जब भी तुम एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक खोल के बैठोगे ना, देख लेना, आज का आज ही देख लेना, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक, सीबीएसई की टेक्स्ट बुक्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइंस अगर तुम देखोगे और वहां पे पेजेस टर्न करोगे, फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, सारे फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इन अ वेक्टर क्वांटिटी एंड फॉर अ बॉडी फॉलिंग वर्टिकल डाउनवर्ड्स मींस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एंड दैट इज -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सारे नेगेटिव, सारे नेगेटिव, यानी सारे आंसर्स तुम्हारे फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे, सारे आंसर्स तुम्हारे -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आ रहा है? यानी ये तुम्हारा करेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड नॉट दिस पार्ट ऑफ। क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. देखो अभी सिखाया मैंने कुछ, देखो सिखाया मैंने तुम्हें वो, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स वैसे ही देखते हैं इसको, लेकिन तुम एक्चुअली जब भी समझने जाओ तो इट्स एक्चुअली इन दिस मैनर। तभी जाके तो व्हाट एग्जैक्टली आइटन से कि जो तुमने पढ़ा हुआ है वो सही नहीं पढ़ा है। द फर्स्ट थिंग दे से कि व्हाटएवर यू लर्नड इट इज समवेयर नॉट प्रॉपर। एग्री स्टूडेंट्स? ये पार्ट क्लियर हुआ? क्या है मैं इसको इरेज कर सकता हूँ अभी? ये पार्ट को इरेज कर सकता हूँ स्टूडेंट्स? ये ध्यान में रखना फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे होता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तो कांस्टेंट होगा -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैन आई इरेज दिस पार्ट स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके, भूलना नहीं। Okay. Now let us go for sixth part of the graph. Students, what exactly a sixth graph represents? The This is acceleration. Acceleration. this is uniform acceleration. This is uniform retardation. Of course, deceleration. Agreed? ये होगा तुम्हारा uniform retardation. Students. Seventh वाला graph क्या दिखा रहा है students? Same, sir. हाँ, uniform acceleration, लेकिन in what direction? Negative direction. Negative. ये दिखा रहा है uniform acceleration in negative direction. Students, ये दिखा रहा है तुम्हारा 8 वाला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में? इन पॉजिटिव। नहीं, ये तुम्हारा पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन। प्लीज स्टूडेंट्स अब ध्यान से सुनना। अभी ये दो ग्राफ में सेपरेटली बता रहा हूँ, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना। 7th और 8th, प्लीज एवरीबॉडी हैव अ लुक ओवर हियर। 7th ग्राफ को देखो स्टूडेंट्स। Everybody please pay attention, keeping time constant. Look at the point on the y-axis. मुझे बताओ स्टूडेंट्स, क्या ये गैप बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? ये देखो, ये गैप y-axis का गैप बढ़ रहा है कि कम होगा? बढ़ रहा है. बढ़ रहा है. I getting it? That means it's uniform acceleration in what direction? Positive direction, students. वही अगर मैंने ये वाला ग्राफ लिया होता, sorry, in this case, कम होता so है. what exactly consider? It's in negative direction. समझ में आ रहा है? इसका स्लोप तुम्हें नेगेटिव मिलेगा और इसका स्लोप तुम्हें पॉजिटिव मिलेगा. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? सर एक और बार समझा सकते हो? Students, ये फिफ्थ ग्राफ क्या है तुम्हारा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. एग्रीड? स्लोप कैन बी पॉजिटिव. एग्रीगेट स्लोप यानी तुम्हारा बॉडी इज गेटिंग रिटार्डेड इन दिस केस तुम्हारा. आई गेटिंग इट? यही ग्राफ अगर मैं नीचे की तरफ लेके जा रहा हूं स्टूडेंट्स, मोशन तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, व्हाट हैपेंस? द डिस्प्लेसमेंट इज नाउ गोइंग ऑन इंक्रीजिंग इन दिस केस. अभी देखो ना, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन दिस केस वी कंसीडर. और यहाँ पे क्या है तुम्हारा? टाइम इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? देखो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है, लेकिन कंपैरेटिवली करो दोनों केस में, तो दोनों केस में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है स्टूडेंट्स. दोनों केस में तुम्हारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है स्टूडेंट्स. लेकिन तुम अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखोगे स्टूडेंट्स, तो तो तुम्हारा ये जो ग्राफ दिखा रहा है स्टूडेंट, 7th वाला, आई गेटिंग इट? 7th वाला क्या दिखा रहा है? 7 दिखा रहा है इट्स इन द नेगेटिव, सॉरी ये नेगेटिव डायरेक्शन होगा स्टूडेंट्स. ये डिक्रीज हो रहा है और ये इंक्रीज हो रहा है. ये डिक्रीज हो रहा है स्टूडेंट्स, एवरी टाइम इट्स गोइंग ऑन डिक्रीजिंग. और ये क्या हो रहा है तुम्हारा? इंक्रीज हो रहा है. अगर तुम देखोगे ना स्टूडेंट्स, एनी टू वैल्यूज, ये देखो, यहाँ पे तुम देखोगे तो क्या होगा? इट्स ग्रेजुअली गोइंग ऑन इंक्रीजिंग इन दिस केस. लेकिन यहाँ पे तुम्हारा डिक्रीज हो रहा है. तो व्हेन यू लुक एट द 7th पार्ट ऑफ द ग्राफ स्टूडेंट्स, द 7th पार्ट ऑफ द ग्राफ, ये वाला ग्राफ स्टूडेंट्स,
7 part of the graph speaks about the body is moving with uniform acceleration, we consider. But in what direction, students? In negative direction, students. ये uniform acceleration है. In what direction? Negative. ये क्या है? Uniform acceleration है, students. ये more precisely मैं बोलूंगा तो uniform retardation होगा. ये हो जाएगा तुम्हारा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नेगेटिव. लेकिन ये रिटार्डेशन कौन से डायरेक्शन में, ये भी कौन से डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में ही है. समझ में आ रहा है? ये दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, लेकिन ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है. बोथ ऑफ देम आर इन नेगेटिव. क्योंकि तुम्हारा स्लोप क्या होगा दोनों केस में. अगर तुम स्लोप देखो स्टूडेंट्स, ऐसे तुम ग्राफ बनाओ और तुम ऐसे ग्राफ बनाओ, मुझे बताओ ये तुम्हारा वैल्यू है y1, एग्री, करस्पॉन्डिंग वैल्यू x1 है, ये तुम्हारा x2 होगा, ये तुम्हारा y2 होगा. मुझे पता स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, बताओ. हाँ स्टूडेंट्स, अगर मैं ये ग्राफ लेता हूँ तो मेरा स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो मुझे क्या पॉजिटिव आंसर मिल रहा है, नेगेटिव आंसर मिल रहा है? इसके लिए Negative. नेगेटिव. दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग नेगेटिव. लेकिन ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. यहाँ पे भी देखो ना स्टूडेंट्स, ये देखो, ये x1, ये y1, ये x2. देखो तुम्हारा y2 की वैल्यू कम है. स्लोप क्या है स्टूडेंट्स, y2 माइनस y1, यानी ये भी तुम्हारा नेगेटिव है, डायरेक्शन इज नेगेटिव भी कंसीडर. लेकिन ये क्या है, मोशन इज गेटिंग रिटार्डेड. गेटिंग इट? तो ये तुम्हारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये तुम्हारा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, बोथ ऑफ देम आर इन नेगेटिव डायरेक्शन. ये तुम्हारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन में कंसीडर, दिस इज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. अगर तुम ये 6 वाला ग्राफ देखोगे ना स्टूडेंट्स, तो देखो 6 वाला ग्राफ कैसा है. Displacement versus time. Students, listen carefully. Keep time constant. I'm keeping equal time. Students, look at the displacement. ये देखो, फिर ये देखो, ये देखो, ये देखो. अभी डांस देखना स्टूडेंट्स. मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है या कम हो रहा है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है? बढ़ ये रहा है, गैप देखो. हाँ गैप देखो ना, ये गैप देखो, ये गैप देखो स्टूडेंट्स. कम हो रहा है ये सर. गैप कम हो रहा है. समझ में आ रहा है? दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड. इसमें भी मैंने वही बताया, तुम्हारे ये गैप कम हो रहा है, लेकिन ये तुम्हारा कौन सा है, तुम्हारा y2 माइनस y1 है. स्लोप विल बी पॉजिटिव इन दिस केस, यानी यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बट इन पॉजिटिव डायरेक्शन. समझ में आ रहा है? ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन नेगेटिव डायरेक्शन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन इन नेगेटिव डायरेक्शन. अब यहाँ पे देखो, कुछ टाइम के बाद में क्या होगा स्टूडेंट्स, कुछ टाइम के बाद में क्या होगा, लुक एट योर ग्राफ, लुक एट योर ग्राफ, द ग्राफ इज पैरेलल, दैट मींस द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. यानी इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, पीओ कार चला रही है, आई गेट इट, और ऑल ऑफ अ सडन कार में से टायर पंक्चर हो गया उसका. तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, कार का जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस कवर्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो कम होते जा रहा है, 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 क्योंकि हवा निकल गई उसमें, फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा एक्ट हो रहा है. एक टाइम पे टायर में इतनी हवा निकल गई कि भाई अभी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है. यानी देखो ये ग्राफ कैसे जा रहा है, कहने से ये ग्राफ इसको रिप्रेजेंट कर रहा है. कार रुक गई, कार रुक गई, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट देयर. समझ में आया स्टूडेंट्स? Yes, sir. Can you give me the answer for the ninth one? देखो टाइम कांस्टेंट लिया है स्टूडेंट्स, टाइम इज कांस्टेंट एंड डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग. नाइन्थ ग्राफ, इसका आंसर दे सकते हो स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स इसका स्लोप इन्फिनिटी होगा ना, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, स्लोप क्या होगा, ये टाइम है और ये डिस्प्लेसमेंट है. स्टूडेंट्स ये y2, प्लीज थोड़ा सा इंस्टिंक्ट पे जाओ ना. y2, y1, सर स्लोप इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो जीरो होगा. व्हाट इज 1 अपॉन 0? व्हाट इज 1 अपॉन 0? इनफाइनाइट. स्टूडेंट्स नाइन्थ वाले के ग्राफ के लिए स्लोप क्या होगा, इंफिनिटी. स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है, क्या पोजीशन टाइम ग्राफ है, कैन बी स्पीड ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज इनफाइनाइट. स्टूडेंट्स मुझे बताओ,
क्या किसी भी बॉडी का वेलोसिटी इनफाइनाइट होता है एट कांस्टेंट टाइम? No, sir. No. Displacement increase with increase in time. So can such graph is possible? Not possible. possible. ये है absurd. Please. Absurd है ये. Graph 9 is totally absurd. ऐसे कभी भी possible नहीं होता है. क्या ये 9th ग्राफ क्लियर हुआ स्टूडेंट सबको? सर मतलब आपने जानबूझ के गलत दिया ना। हाँ, जानबूझ के मैंने गलत दिया, वो सोच के क्लियर दिया है ना। अभी चलो 10th वाले को बताओ। Sir, not possible. हाँ, क्यों नॉट पॉसिबल? Sir, because the value for x2 and x1 are equal, that's why it will be 0. अच्छा, अभी एंड देखो, शी इज गिविंग यू वेरी करेक्ट, लेकिन एक इसी तरीके से समझना है तो ध्यान से सुनना। ओके स्टूडेंट्स, क्या हम एक ही टाइम पे, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, क्या हम एक ही टाइम पे एक ही टाइम पे एक ही टाइम पे नेहा को क्या दो अलग पोजीशन पे पा सकते हैं? नो हाँ, सर। एक ही टाइम पे तुम्हें एक ही नेहा दो अलग अलग जगह पे दिखाई देगी? नो सर, नॉट नहीं पॉसिबल। ना, इसलिए नॉट पॉसिबल। स्टूडेंट्स 10th वाला इज नॉट possible. Since at a given time, a particle cannot have two different positions. क्या ये clear हुआ students? यस सर। sir. Okay. Students, now please pay attention for the graphical way of representation. Students, it's position time graph we consider. When we speak about position time graph, students, the first one is for rest, second one is at rest, third one is what we consider uniform velocity in positive direction. Fourth one we consider is uniform velocity in negative direction. Fifth one which speaks about uniform acceleration, students. Okay, positive direction, uniform retardation, students, in positive direction. 7th and 8th is uniform acceleration, uniform retardation, but both are in negative direction, slope negative RS, students. 9th wala, not possible practically. 10th wala, not possible. Can I erase this now? Yes, sir. सर, Bolo. can I ask one lame question? Pardon? Can I ask one lame question? Can I ask for? सर एक बहुत stupid question है दिमाग में, but like I can't understand that. Let me finish with this later on. Okay? इसी के related है? Yes sir. हाँ बोल ना तो कुछ। हाँ। सर 6th वाला ग्राफ वो कौन सा 6th मतलब वाला? डाउनवर्ड जाके it can't be parabolic. 6th वाला? Yes sir. So these are all parabolic graphs actually, students. ये तो हमारा parabolic graph तो है। तुम 5th ले लो, 6th ले लो, I getting it? 7th ले लो, Okay. ये parabolic graph. Okay? Can I erase this, students? Yes. Now we go for this was position time graph, students. Now we go for velocity time graph. अभी उसके बारे में तो बताना what exactly each graph represents. Yes. Can you speak about each graph?
This is for velocity time graph, students. Now see, just 15 minutes are left and see the students, they just go on leaving it. None of the parents are bothered, you know. This is the problem with the students. और फिर जब भी marks कम आते हैं, during that time they try to create कि नहीं, we are not able to get it. Online sessions are like this and that, like that. First of all, students remain absent. They come to their time. अपने फुर्सत से अंदर आते हैं, लेक्चर शुरू हो जाते हैं, फिर भी स्टूडेंट्स pour in at 9 o'clock also to their comforts. And when I ask to the students, they say 40 is the strength of this batch. मैं सोचो 13 students absent, 13 क्या 14 students are absent. This is a problem with the students. Yes, students, can you answer, students? इसके सारे, anyone? Yes, anybody for the first one? Sir, at rest. Rest. Uniform First one is- velocity, sir. First one is at rest ना, zero at time but लेकिन body is Yes, not moving. sir. जार क्या कर रहा है? टाइम बढ़ रहा है लेकिन 0 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है ना, तो मीटर पर सेकेंड आएगा ना, तो व्हाट एग्जैक्टली बॉडी सिंपली एट रेस्ट. सेकेंड वाला क्या होगा? At rest. एट रेस्ट. Velocity. टाइम बढ़ रहा है, नाउ योर बॉडी इज गोइंग विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी. Since the body is moving with uniform velocity. Second वाला is uniform velocity. Acceleration in this case will be 0. लेकिन body का velocity constant है. Students देखो ना, ये मैंने 0 पे रखा है ग्राफ और वो वाला कहाँ पे रखा है? टाइम बढ़ रहा है. Students look at the velocity. Velocity is not changing, keeping constant. यानी सोचो कि तुम एक हाईवे पे जा रहे हो स्टूडेंट्स. तुम्हारी कार 0 किलोमीटर पर आवर से सपोज 80 किलोमीटर तक पहुंची है और उसके बाद में टाइम बढ़ रहा है लेकिन तुमने तुम्हारा स्पीड कांस्टेंट रखा 80 थ्रू आउट. टाइम हो गया 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, लेकिन गाड़ी की स्पीड सेम है. तो व्हाट एग्जैक्टली? इट्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी. कार कहाँ पे रेस्ट पे? कार इज इन मोशन. यू गॉट इट, गेटिंग इट? Yes, sir. Sorry, sir. ऐसे नहीं करते. आंसर्स आने के बावजूद भी तुम नहीं सोचते हो बराबर, फिर गलत आंसर देते हो तो इट लूजेस कॉन्फिडेंस एंड यू फील कि द थिंग्स आर टफ, बट नो इट्स नॉट टफ. थोड़ा टाइम लेके सोचो ना. अभी थर्ड वाला ग्राफ क्या होगा स्टूडेंट्स? The body is having increase in velocity. Is the velocity increasing uniformly? Yes, sir. Uniform. Yes, sir. acceleration. Uniform acceleration. What exactly speaks about? Uniform acceleration. In positive direction, na sir? In positive direction. मुझे बताओ students, what is the definition of uniform acceleration? Students, what is the definition of when a body covers equal change in velocity? Equal change in velocity, equal interval of time. यही तो definition पढ़ा हम लोगों ने. उस टाइम पे मैंने velocity time graph में बताया था students. When a body covers equal change in velocity in equal interval of time, the body is set to move with uniform acceleration. यानी अगर मैं इसका acceleration time graph लूंगा तो मेरा ये constant आएगा. And the velocity is increasing uniformly along the positive direction. Acceleration uniform. क्या ये क्लियर हुआ? ये acceleration, ये velocity time graph, इसी का acceleration time graph ये होगा. क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. फोर्थ वाला क्या हो गया?
फोर्थ वाला क्या हो जाएगा सर? यही चीज फोर्थ वाला में वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपने ऐसे दिया है, ये क्या होगा? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। Retardation. यूनिफॉर्म रिटार्डेशन नेगेटिव में आएगा। देखो ये होगा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। फिफ्थ पार्ट क्या होगा? व्हाट इज द फिफ्थ ग्राफ स्पीक्स अबाउट? मुझे बताओ, is it uniform velocity or non-uniform velocity? Non-uniform. That is variable. So what exactly? Is it increasing acceleration or decreasing acceleration? Increase. Increasing. Increasing acceleration. Can I say this is moving with increasing, the body is moving with what? Increasing acceleration. और ये graph non-uniform है students. Positive slope. Acceleration is increasing, we consider, but it's in positive slope we consider, and it's non-uniform increase in velocity. ये क्या है? Non-uniform increase in velocity we consider. Agreed? Yes, sir. लेकिन अगर तुम 6 पे जाओगे तो क्या होगा? 6 पे जाओगे तो क्या होगा? Decreasing. Decreasing. Yes, non-uniform decreasing. क्या ये clear हुआ students? Yes, sir. 7th वाला ग्राफ क्या पॉसिबल है स्टूडेंट्स? No, sir, not possible. Time t equal to 0, velocity is reaching to infinite. It's not possible. Practically not possible. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स सबको? Yes, sir. Yes, sir. Erase it. Yes, No, sir, just a minute. इसके लिए तुम लिखना नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी, 6 के लिए लिखना नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग वेलोसिटी। स्टूडेंट्स ये दोनों नॉन यूनिफॉर्म में लिखना, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। Students, have your colleges started or what? No, sir. not yet. Yes, can I erase it now? Yes, sir. So the last question is like acceleration time graph. Okay, ये बहुत ही कम ग्राफ्स होते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स वहाँ पे स्लोप तो पॉसिबल होगा ही नहीं, है ना? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में स्लोप तो पॉसिबल होगा नहीं। तुरंत तुम बोलोगे हाँ सर कि y by x लोगे तो मीटर अपॉन सेकंड क्यूब आता है, और ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी है नहीं, इसलिए तुम्हारे स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के विल बी वेरी लेस ग्राफ स्टूडेंट्स। अगर सपोज मैंने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया स्टूडेंट्स वर्सेस टाइम, ओके, if in case if I happen to go for the first graph, ये मैंने फर्स्ट ग्राफ दिया स्टूडेंट्स, ये सेकंड ग्राफ दिया है, ठीक है, ये थर्ड ग्राफ दिया है स्टूडेंट्स, और ये फोर्थ ग्राफ। चलो ये चार ग्राफ क्या दिखाता है? Sir, this is for what? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। Acceleration. तो इस फर्स्ट ग्राफ क्या दिखाता है? ये सब चलो मैं पूछ रहा हूँ, बॉडीज एट रेस्ट और बॉडीज इन मोशन? At rest. Rest. At rest. Acceleration is 0. PO,
Yes, sir. Your dad is driving a car and you're in a car and your car is moving at 70 kilometers per hour initial. After 10 seconds also 70 kilometers per hour. Final is 10, 70. What is acceleration? V minus U upon T. आया ना? Yes, sir. 70 minus 70 का आंसर क्या होगा? 0. तो एक्सेलरेशन 0 है तो क्या कार रुकी हुई थी तुम्हारी? No, हाँ sir. हाँ हाँ, जरूरी नहीं है. यानी स्टूडेंट्स फर्स्ट ग्राफ बता सकता है यस कार कैन बी कंसिडर्ड एट रेस्ट, लेकिन उसका अगर सही नॉट नेसेसरीली एट रेस्ट, कार कैन मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे जाता है तो एक्सेलरेशन 0 होगा. ये क्या है? सेकंड ग्राफ क्या बताता है? द कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा स्टूडेंट्स? वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा? ये वाला होगा वेलोसिटी. सेकंड के लिए स्टूडेंट्स, सेकंड के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा? इक्वल चेंज इन वेलोसिटी. अगर तुम इसका एक्सेलरेशन प्लॉट करोगे तो ये आंसर आएगा. ये देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, उसी का एक्सेलरेशन ये आएगा. इज द ग्राफ पैरेलल? यस. तो ये सेकंड ग्राफ क्या बताता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. थर्ड ग्राफ क्या बता रहा है? व्हाट इज थर्ड ग्राफ स्पीक्स अबाउट? इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, पॉजिटिव है ना? डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन. Yes, sir. That's all. Simply तो वही लेना है. Uniform increase in acceleration, uniform decrease in acceleration. That's all. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स चारों? Yes, sir. हाँ sir. Okay. So students, we learned about graphical way of representation. We learned about the integration part of it. We learned about what exactly slope of the graph means, what exactly area under the graph means, what exactly speaks about. Okay. Displacement time graph, that is position time graph, velocity time graph, and acceleration time graph. Next time we'll be solving problems onto this. Agree, students? Yes, sir. Okay. But kindly revise your formulas. Formulas revise करना, graph को एक दफे देख लेना students. Okay, students? Noted, sir. Yes, sir. See ya. Okay. Thank you, sir. Thank you. Most welcome. Thank you, sir. Have a good Yes, day. sir. Bye, sir. Yeah, bye-bye.